treating oral cancer in Bharat जैसे देश में is the biggest challenge which I accepted it and since 13 years I'm doing that. Early stage में अगर पता चल गया that you have mouth cancer, do you think that it is completely curable? 90% yes, 10% again patient को मैं blame करूँगी because once they finish the treatment they don't come for follow up or they start their again habit history again कि हो गया ना तो क्या है चलो फिर से खाते हैं देखते हैं. Chemotherapy, लोग घबरा जाते हैं ये word से. Would you like to say something on that? So chemotherapy is a part of either आपके ऑपरेशन से पहले होगा अगर आपका बहुत बड़ा ट्यूमर है गाल से बाहर आ गया हो और या फिर आपके ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी दी जाएगी. Talking about mouth cancer, what are the early symptoms? वेरी सिंपल, कोई भी वाइट या रेड पैच हो मुंह में, गले में, जबान को बाहर निकाल के ऊपर करके आप खुद ब्रश के टाइम पे देख सकते हो. एनी बर्निंग सिम्टम्स, मतलब आप थोड़ा भी चिली खा रहे हो और सह नहीं रहा है, इट्स एन अलार्म, आपको कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में, यू गो एंड गेट अ चेकअप डन. Right? Do you really think only because of tobacco cancer can happen? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में. लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, डॉक्टर रीना यादव जी. वेलकम टू एक सोच मैम. थैंक यू. Since this entire podcast is about Ek Soch, I believe that one soch can change our entire journey 360 degree. So what was your one soch that changed your life? I think treating oral cancer in Bharat जैसे देश में is the biggest challenge which I accepted it and since 13 years I'm doing that. Wow, that's मैं amazing. इसी सोच से चेंज कर रही हूँ कि कैंसर ठीक हो सकता है. Wow, you are on amazing journey. Okay. Also I've seen डॉक्टर के व्हाइट कोट के पीछे अपनी पर्सनल स्टोरीज होती है. What was yours? So basically I belong to a medical field. It is a very tough part to explain my parents that yes, your daughter can operate, she can cut the patient. And I had my sister. I lost her when I was 14 years old. She was my cousin, but she was very dear to me. At that time I realized what exactly went wrong. She was suffering from blood cancer. I lost her when I was 15. So pura 1 year of journey was so hectic for my parents being a doctor, his parents being a doctor. When I realized कि सिर्फ कैंसर पेशेंट नहीं, पूरा फैमिली इमोशन एज वेल एज इकोनॉमिकली ड्रेन होता है. So at that time I realized कि नहीं, कुछ तो करना है which I can be a part of change. That's amazing, being a woman and a surgeon doing amazing work, and I'm sure that you made your family believe that I can also be a part of this and I can do this. Yes, I am. 90%, 10% yet to be proven. But wish you all the best for the same. Thank you. So when I was going through your profile, I've heard this word maxillofacial surgeon for the first time. It's very new for me. Would you like to throw some insights on that? Yes. ये आपके लिए नहीं, मुझे भी बहुत लोगों को, पेशेंट को भी समझाना पड़ता है what it is. So we belong to a dental background where we do a post graduation for 3 years in maxillofacial surgery, जिसमें नेक और फेस का पार्ट रहता है along with the teeth. So हम लोग cleft palate, fractures, प्लास्टिक सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज, ये सब हम करते हैं. बट उसके बाद आपको और नीश या सुपर स्पेशलाइजेशन में जाना है तो इट डिवाइड्स अगेन इन 3 to 4 पार्ट्स. जैसे किसी ने कॉस्मेटिक पे आगे 8 years to 9 years कर लिया, किसी ने ट्रॉमा पे एक्सपीरियंस ले लिया, किसी ने कैंसर में एक्सपीरियंस लिया, जो हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी होती है, जो मैंने किया. Okay. So it's a long journey, but yes, we are overlapping ENTs, plastic surgeries and dental background. Lovely. That's amazing. So apart from all the other field, you chose head and neck cancer surgery. Why did you chose such a difficult part of our body? So your looks are very beautiful. तो फेस एक आइडेंटिटी होती है. Exactly. आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए. पेशेंट जब कैंसर से आता है वो सबसे पहले अपने फेस को लेके डरता है. फेस आपका एक पहचान है, उस पे एक स्कार आना इज अ बिग प्रॉब्लम. आप उसके साथ साथ अपनी जिंदगी पूरी पलट देते हो. कि कैंसर बोल दिया, जिंदगी पलट जाती है, जिसमें सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट का पूरा फैमिली, नेबर्स, एसोसिएटेड फ्रेंड्स, सब कोई डर जाता है. सो फेस एक ऐसा चीज है जिसको मुझे ब्यूटिफिकेशन और स्किल से क्राफ्ट करते हुए कैंसर निकालना है और उसे बनाना है. दैट इज अ बिगेस्ट स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फेल्ट. एंड आई थिंक
ये फील्ड को मैंने नहीं चूज किया है, उससे मुझे चूज कर दिया है। एग्जैक्टली एंड इट ऑलवेज हैपेंस दैट, राइट? हाँ, मुझे लगता है कि फील्ड ही आपको चूज करती है. यू आर नॉट द वन हु चूज Yeah, द फील्ड. yes. एंड यू वेरी राइटली सेड कि फील्ड ने मुझे चूज किया है, मैंने फील्ड को चूज नहीं किया है. So when I was just researching about your entire journey and your Instagram and everywhere, what I've also observed that there was one turning point in your life where you have mentioned that 14 साल पहले you lost one of your cousins. Would you like to say something on that? Yeah, I mentioned my cousin was very nearest to me. She was suffering from blood cancer. हमें पता ही नहीं चला, उनको गले में एक swelling था. We neglected it कि ठीक है Oh. infection होगा. And we both work from the medical field. My parents work from medical field. Her father was also a doctor. But we just neglected. जब pain start हुआ, we were already late. फिर हम एक बड़े इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड फेमस है वहाँ गए एंड वी सॉ द जर्नी, वी सॉ द क्राउड, वी सॉ द वेटिंग पीरियड. Eventually we fought for 1 year but I lost her. So I think that's the turning point where I feel कि जो भी patient मेरे पास आ रहा है, she's somewhere seeing me and I should be genuine to the family and the patient. Agreed. I'll come to this topic as well. Cancer is a word, like, on and off I hear this many a times in my family or someone else's family as well. But before that, I really want to understand, how was your first surgery experience? It was quite interesting. So हमें क्या होता है कि हमें राउंड्स मिलता है एंड योर बॉस हु इज योर मेंटर, ही डिसाइड्स कि आपको कब ब्लेड देना है या ओटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है. तो one morning we came down and he just pointed the patient and he said, you are going and leading the OT. It was quite thrilling and excitement, but yes, it comes with the responsibility. और ऐसा था कि पेशेंट के पास ब्लड नहीं था. She was O positive, but due to heavy patient flow, we did not have the blood. And fortunately, I was O positive. So I decided I went to the blood bank क्योंकि मुझे operate करना ही है. So I went to the blood bank. I gave my blood in exchange to her, and after 2 hours, I got the OT. It was amazing, and I took care of her very like a baby. She's my first patient. She's my first patient, and eventually she got healed and she left. She was discharged, but after 1.5 years, she came back with a recurrence. तब मुझे फील हुआ कि ठीक है, आई वॉज सो एंग्रॉस्ड इन माई OT, बट आई शुड हैव गाइडेड हर बिफोर कि आप थोड़ा और जल्दी आते तो शो यू वुड बी विद योर फैमिली. और रेकरेंस नहीं होता. रेकरेंस मतलब दोबारा सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा. बट आई लॉस्ट हर. सो आई रियलाइज्ड कि कैंसर सिर्फ डीले के वजह से या नहीं पता होता है, कैजुअल बिहेवियर की वजह से हम छोटी छोटी चीज़ों को निग्लेक्ट करते हैं एंड वी लैंडेड देयर. सो येस, दैट वाज माय first case which I could not forget, and I cried also that I lost her. Yeah. So that was an emotional part, but okay, you have to come over it. Yeah, doctors can also be emotional. Yes. And it's a tough part. I mean, it's a tough profession which you are in, right? You have to do surgery. यहाँ पे तो हम अगर किसी का ब्लड भी देख लेते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं, right? So you are actually doing everything, like, opening the most important part of their body and then doing the surgery. So of course doctors can also be emotional because they are absolutely attached with the patients, and the one thing that they have in their mind always is, I want to make sure that your patient ठीक हो जाए. Correct. Now talking about cancer, कैंसर कई बार सिर्फ लास्ट स्टेज में ही पता होता है. So what kind of symptoms do we need to consider before we even go to doctor and understand कि मुझे कैंसर है या नहीं? सो सिंपल, कैंसर 2 टाइप के होते हैं. एक सॉलिड ट्यूमर होता है, मतलब कड़क चीज आप किसी भी बॉडी पार्ट्स में फिल कर सकते हो. दूसरा होता है लिक्विड ट्यूमर जो आपके ब्लड में होता है. यूजुअली आपको आपके नहाते वक्त या ब्रश करते वक्त आपको आपका एग्जामिनेशन खुद करना है, जिससे आपको पता चले कि कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा छाला तो नहीं है जो ठीक नहीं हो रहा है. एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड, गो एंड टेक अ एक्सपर्ट ओपिनियन. He will help you and guide you whether it is normal or it can be cured or it is some kind of disease. Okay, but ये बहुत यंग एज में भी बहुत लोगों को हो रहा है. अभी जैसे आपने छाले की बात की, तो कई बार गर्मी का समय है तो छाले हो जाते हैं. So कब रियलाइज करना चाहिए कि कितना मतलब ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? I always tell my viewers and my patients कि 2 हफ्ते से ज्यादा कुछ नहीं ठीक हो रहा वो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. इफ यू आर फीमेल, चेक योर ब्रेस्ट, चेक योर एक्सिला, आर्मपिट्स बेसिकली.
और अगर आप मेल हो, टबैको की हिस्ट्री है, नहीं है, फैमिली में किसी को कैंसर का हिस्ट्री है, तो मुंह में कोई भी छाला या कोई भी लम्प, गले में कोई स्वेलिंग जो 14 दिन से ज़्यादा ठीक नहीं हो रही है, दैट्स योर अलार्म कि आपको जाके एक्सपर्ट को दिखाना है, डेडिकेटेड एक्सपर्ट को दिखाना है, नॉट एनी डॉक्टर। ओके, सो यू वर टॉकिंग अबाउट टोबैको, राइट? पीवीआर्स में जब हम जाते हैं, हम जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि टोबैको खाने से ही उनको ओरल कैंसर हो गया, right? Do you really think that is the reality, that only because of tobacco this can happen? No, partially yes. Tobacco is one of the factor. देखिए कैंसर आपके ही सेल्स में है, उसको सिर्फ एक ट्रिगर फैक्टर चाहिए। Okay. सो आजकल जो हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड, सबका जेनेटिक्स इम्यूनिटी इम्बैलेंस हो गया है। सेकेंडली स्ट्रेस लाइफ बहुत हो गया है, खुद की बॉडी से ज़्यादा हम बाहर की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप्स कंटिन्यूस रेडिएशन में है हम लोग, पोल्यूशन ऑलरेडी है, सो यू डोंट नो कौन सा सेल किस चीज़ से ट्रिगर होगा। दैट इज़ वन। सेकेंडली पुअर ओरल हाइजीन। मेरे को नहीं पता कि किसी जब तक आपको तकलीफ नहीं हो आप डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो। थर्डली व्हाट आई हैव सीन रिसेंटली इज कि जो डायबिटीज पेशेंट्स है, बीपी पेशेंट्स है, एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं, ये सब एक ऐसी मेडिसिन में है जो उनको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ रहा है, उसके वजह से भी उनकी इम्यूनिटी कम है। तो ओनली थिंग इज आप खुद अपने डॉक्टर ऑफ एग्जामिनेशन करो, कंफ्यूजन है जाओ अपने डॉक्टर के पास, टेक अ ओपिनियन एंड रूल आउट द कॉज। जितना जल्दी आप चीजों को डायग्नोस कर पाओगे उतना जल्दी आप ठीक होगे। So you were talking about stress, right? Do you think that that is the first most important thing जहाँ पे कैंसर के like you know वहाँ पर चला जाता है, like you know it because can of stress? because if you see stress life में लोग स्मोकिंग कर लेते हैं, you need something जिस पे आप डिपेंड कर पाओ। Yeah. Then I've seen people switching from tobacco to nicotine tablets, मतलब आप एक चीज से निकल रहे हो दूसरी चीज में जा रहे हो, सहारा ढूंढ रहे हो। एंड स्ट्रेस इज ऑफ कोर्स बिकॉज आपकी बॉडी थकती जा रही है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो रही है, आपको विटामिन डेफिशिएंसी, इसलिए आप थक रहे हो, ओवरलोडेड हो, आपको अपने लिए लाइफस्टाइल के लिए टाइम नहीं है। सो समवेयर और दी अदर, फैमिली हिस्ट्री आपने कभी कंसर्न ही नहीं किया कि जाके मैं चेक करा लूँ खुद को। करेक्ट। These are the important part of the activity. और कैंसर नहीं, any disease is a part of the stress. Yeah, I totally agree to this. कोई भी डिजीज हो वो स्ट्रेस से शुरू होती है, और मे बी एज यू राइटली सेड बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल आल्सो। रेडिएशन की बात करो तो लोग 24 घंटा सिर्फ 30 सेकेंड ड्रिल के लाइफ में जी रहे, डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे। टॉकिंग अबाउट माउथ कैंसर, राइट? पहले लोग इतना चर्चा इसका नहीं हो रहा था, जब से ये सिनेमाज में इतनी एडवर्टीजमेंट्स दिखने शुरू हुई है। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस, बट नाउ इट इज बिकमिंग वेरी कॉमन इन इंडिया। ओके, सो आई जस्ट हाईलाइट ऑन दिस। पहले हमारे पूर्वज पान खाते थे, so, जो पान खाता था उसमें सौंफ होती थी, विच इज अ नेचुरल हीलिंग, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इवेल्युएट होने लगे, गुटखा आया, जर्दा आया, तंबाकू आया, चूना आया, सो वी स्टार्टेड यूजिंग दैट, एंड पान का चलन बिकॉज ऑफ द हाइजीन चेंज होता चला गया और हमने पैकेट में उसको कन्वर्ट कर लिया। And when you're stressed, you need something in your mouth, or you need something to calm yourself. So patients go switch on it. One. Secondly, मैंने देखा है लोग कॉलेज में स्टार्ट करते हैं peer pressure में, they don't know the control. अभी तो स्कूल डेज से शुरू हो जाता है, 9-10 के बच्चे। एजुकेशन नहीं है हमें बताने के लिए। Exactly. And that has caused again society में very relevant. आजकल smoke is everywhere. Tobacco form या any other form. देन मोटिवेशनल, आपको कोई स्किल्स बताने के लिए ही नहीं है कि अगर आप स्ट्रेस हो रहे हो तो आप मेडिटेट करो, योगा करो, विच हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर एंसेस्टर्स सिंस years. And this has caused, secondly, पुअर ओरल हाइजीन, मतलब दांत निकाल लिया आपने, एक फिटिंग डेंचर पहन लिया, आपकी दादी बहुत दिन से सेम डेंचर पहन लिया, डायबिटिक है, कहीं ना कहीं घाव बन रहा है, यू आर नॉट कंसर्न कि क्यों हो रहा है। व्हेन शी स्टार्ट्स कंप्लेनिंग ऑफ पेन, तो होता है। एक होता है कैजुअल एटीट्यूड, मुझे छोड़ना ही नहीं है, देख लेंगे जो होगा होगा। करेक्ट। दिस इज ऑल वी फेस एवरी डे इन माय ओपीडीज। या सो टॉकिंग अबाउट ओरल कैंसर आल्सो, व्हाट आई हैव सीन, मतलब जो अगर आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कुछ हो गया उसके बाद आपके माउथ में आता है, व्हेन यू टॉक अबाउट ओरल हाइजीन, हाउ रियल इज दैट? इट इज ट्रू। आपका माउथ और गट ही आपको रियलाइज कराता है आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है।
एग्जाम्पल आपकी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, पेट साफ नहीं हुआ तो तुरंत मुंह में छाले आ जाते, दैट शोज की इट इज इम्पोर्टेंट। और गुड पार्ट अबाउट आवर माउथ इज चाय पीते पीते टंग जल जाता है तो यू डोंट गो टू द डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन, इट इज सेल्फ हीलिंग, आपका सलाइवा में ही एंटीबायोटिक्स। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इज अवर बॉडी। ओरल कैंसर में क्या होता है, आपने ऑलरेडी पुअर हाइजीन है, आप स्ट्रेस में हो, आपने गुटखा छोड़ ही नहीं रहे हैं, लोग गुटखा मुंह में डाल के सो भी जाते हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द हाइजीन। सो इससे ट्रिगर फैक्टर होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो मैंने बचपन में खाया था, मैंने तो 10 साल पहले छोड़ दिया, अभी मुझे कैसे आया। तो तब आपकी बॉडी यंग थी तो सब कुछ आपकी बॉडी फील कर ले रही थी, झेल ले रही थी, बट आप जब 30s के बाद आपकी बॉडी डीजनरेट होती है, यू नॉट द सेम एज यू वर यंग। तो जो हैबिट आपने यंग में किया है वो आपको आपके ओल्ड एज में सफर करना पड़ेगा। करेक्ट। बट कई बार जैसे मेरे कई दोस्त है या फिर कई फैमिली मेंबर्स है, आई हैव ऑलवेज हर्ड दिस स्टेटमेंट, निराली ये जो आप कैंसर की बात कर रहे हो, ओरल कैंसर की, ये उन्हीं को क्यों हो रहा है जो स्मोक नहीं करता, जो टोबैको नहीं लेता। वेरी नाइस लाइन। ये उनको इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, या फिर सेल्स में कोई डीएनए चेंजेस हुआ, कुछ ट्रिगर हुआ। आप उनको, ऐसा कोई नहीं है जो प्रोसेस फूड नहीं खा रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो यू आर नॉट ईटिंग आउटसाइड, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज कि हाउ हेल्दी यू आर फ्रॉम इनसाइड, हाउ गुड आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन योर बॉडी, हाउ गुड आर यू हाइजीन वाइज। आप दांत को चेक करा लोगे, गले को क्यों नहीं चेक कराए, आप स्मोक करा लिए, आप खाने को गए, हम लोग हर चीज, हम हर जगह पे हमारे घर में इंक्लूडिंग अगरबत्ती इज अ कॉज ऑफ कैंसर, लंग कैंसर। यस, सो व्हाई वी आर पुशिंग इनटू द ऑर्गेनिक फूड्स, क्योंकि आपको वो चीज को चेंज करना है। एयर प्यूरिफायर का चलन क्यों आया, व्हाई एवरीबडी सफर्ड कोविड, सम विन द कोविड, सम आईसीयू से वापस भी आ गए, कुछ लोग नहीं आ पाए। सो कैंसर इज एग्जैक्टली सेम। और हेड एंड नेक कैंसर, स्पेशली मुंह का कैंसर, एक इतना ब्यूटीफुल बोल सकती हूँ मैं कि आप अगर अच्छे से उसका ट्रीटमेंट लो, अपनी हैबिट और अपनी बॉडी को ध्यान दो, तो यू कैन एक्चुअली रिवर्स योर सिम्टम्स। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके बॉडी में है कैंसर, बिकॉज ऑफ इट इज पेनलेस। अगर आपने हैबिट किया है, कुछ साल पहले किया है और छोड़ दिया है, सो प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ चेकअप। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जैक्टली गाइड कर सकती है। वी कैन गिव यू अ रेड लाइन, यू नो, रेड सिग्नल्स कि प्लीज डोंट डू दिस, स्टॉप दिस, चेंज योर हैबिट टू दिस, गेट योरसेल्फ चेक्ड और गेट योरसेल्फ स्कैन्ड, so that tomorrow if you are a candidate we can do it। अभी हमारे रिसर्च में ऐसे भी जेनेटिक्स ब्लड टेस्ट आ गई है कि अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है और आपने वो ब्लड टेस्ट कराया, तो we can know whether you are in a risk or not। Okay, so talking about habits, what are the daily habits which can avoid risk of cancer? You should have some physical activity, at least 20 minutes. You should eat natural fruits and vegetables which is available in India। If you are belonging to our country, we have lot of processed food। घी का इस्तेमाल कीजिए, refined को avoid कीजिए, use more of खड़ा मसालास rather than using powder form। We don't know how they are mentioned it। try to be more organic, change your, even मैंने देखा है बहुत लोग बर्तन धोते हैं वो एक एक 1.5 महीना सेम स्क्रब से करते हैं। so these are all small areas। cleanliness of your house, dust, ACs use कर रहे हो तो please go get a cleaning done। this is all small factors which change food habits and how much you are eating। that is very important to be a healthy। सो कैंसर को फाइट करना, कैंसर कब आएगा, जब आपके सेल्स डैमेज्ड है। एब्सोल्युटली। तो आपको हेल्दी बनना पड़ेगा ताकि आपको कैंसर नहीं है। अगर मैं कैंसर की बात करूँ तो आए दिन सोशल मीडिया का जमाना है, बाकायदा लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा रह रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स आल्सो व्हिच आर सराउंडेड विद द कैंसर, जो वायरल भी हो रहे हैं। वुड यू लाइक टू आउटब्रेक द मिथ? आई विल। I want कि this reel should also reach 1 million because अभी एक रील बहुत फेमस हो रहा है कि आप बायोप्सी कराओगे तो कैंसर फैल जाता है। नहीं, कैंसर नहीं फैलता है। आपको ऑलरेडी कैंसर हो गया है, हमें डायग्नोसिस चाहिए, नाम चाहिए कैंसर का, इसीलिए हम आपका टुकड़े का जांच कर रहे हैं फ्रॉम द सेम स्वेलिंग और सेम गांठ या अल्सर या छाले।
तो ऐसा नहीं है कि कैंसर कहाँ से, अगर आप कैंसर के लिए बायोप्सी नहीं करा रहे हो तो आप अंधेरे में ट्रीटमेंट कर रहे हो। और Okay. कैंसर सिर्फ 2 ही टाइप से, सर्जरी, कीमो और रेडिएशन, इसलिए Yeah. बहुत सारी वैरायटी आई है, इसी से ठीक होता है। आप जितना जल्दी आएंगे उतना चेहरा कम खराब होगा, उतना अच्छा आप अपने लाइफस्टाइल में वापस जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। आप जितना डिले करोगे, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पे जाओगे, आपका उतना टाइम वेस्ट हो रहा है, हीलिंग सफ़र हो रही है। इसीलिए रेकरेंस पेशेंट का मिथ है नेबर्स में कि पेशेंट बचता ही नहीं है, इसकी तो ज़िंदगी खत्म हो जाती है। दिस इज़ ऑल मिथ, इट इज़ द डिले। Okay. क्योंकि जब तक पेशेंट को पता होता है मुझे ये प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास आएगा, बायोप्सी कराएगा, स्कैन कराएगा, he'll take opinion, wait for the surgery, finances मैनेज करेगा, तब तक वो ऑलरेडी delayed है और Absolutely. your alarm has started clicking. Yeah, absolutely. But I've also seen, like, people who are taking radiations and people who are taking chemo, their health eventually gets affected, right? But later on, well, you rightly said, treatment ke early phase biopsy is one of the things which should always be considered. Chemo and radiation should also be considered. But within this period, I think that, patients are also not equally taking good care of their daily habits. सी व्हाट हैज हैपेंड कि जब कैंसर किसी पेशेंट को आता है ना, तो पूरी फैमिली उसके पीछे हो जाती है। Yeah, इट इज मेंटली डिस्टर्बिंग, देयर इज Exactly. ऑलवेज अ yeah, क्वेश्चन द माइंड, मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, मैं इतना जा रहा हूँ, विल आई बी ओके, विल आई बी Yeah. वन इज द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ योर लाइफस्टाइल कि मुझे ठीक होना है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब True. कितने मैंने ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप करो, जो होगा देखा जाएगा। सो दिस एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज। Absolutely. देयर आर सम नेगेटिव पेशेंट, हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या, दोबारा आएगा। सी देयर इज नो गारंटी, वर्ड नहीं होता है, किसी की लाइफ का गारंटी नहीं है, देयर इज ऑलवेज एन अश्योरेंस। True. अश्योरेंस चेंज ऑल द गेम। Agreed. सेकेंडली, हर एक चीज का साइड इफेक्ट है। अगर आप एक्सेस खाना खाओ तो आपको गैस की बीमारी हो जाएगी, विच Yeah. इज अ ट्रू लाइफस्टाइल एग्जाम्पल। Absolutely. Yes. तो आपकी जब बॉडी एक्सेसिव ट्रीटमेंट ले रही है, कीमो, दिस इज ऑल रिवर्सिबल, सिर्फ तब तक है जब तक आपका ट्रीटमेंट का प्लानिंग दिया गया है। वंस यू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल बैक, जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया और अपने लाइफस्टाइल में आप वापस आ गए, देन यू आर गेटिंग हेल्दी। Yeah. डेली हैबिट्स में आई गाइड माई पेशेंट्स, आप वॉक करो, पेशेंट को मत फील कराओ कि तुम पेशेंट हो, ये चीज मत करो, Exactly. ये चीज मत करो। योगा करो, एक्सरसाइज करो। आई टेल मेल पेशेंट्स ऑल्सो कि आपकी वाइफ को हेल्प करो किचन में, मटर छीलो, Very समवेयर और द rightly अदर वेयर said. यू कीप ऑन डूइंग समथिंग, यू हेल्प। अगर आप डिपेंड हो जाओगे, छोड़ दोगे अपने शरीर को, तो 4 दिन 5 दिन आपकी सेवा होगी, नहीं, 6 दिन ये पेशेंट। मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है। मोस्ट ऑफ द पीपल, 80 to 90% पीपल, वो पेशेंट को जिंदगी भर पेशेंट बना के ही रख देते हैं, करेक्ट। एंड दैट इज वेयर थिंग्स गेट अफेक्टेड। एंड यू राइटली सेड इन वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे तो उनका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। किसी किसी को तो आया और चला गया, उनको पता भी नहीं चला। आई टेल माई पेशेंट्स रिलेटिव, जब सेकेंड डे हम आईसीयू में पेशेंट को दिखाते हैं रिलेटिव्स को, मैं बोला कोई भी यहाँ पे रो मत, कि आपका Exactly. चेहरा ऐसा हो गया वैसा। यू हैव टू मोटिवेट, ठीक है जो हो गया हो गया। बहुत ही लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, बट वो घर पे नहीं बैठता है, he Yeah. picks up and he goes True. back to his lifestyle. True. Same as cancer. Why we are treating cancer as इतना बड़ा डिजीज है? You have made it big and you have given everybody opportunity कि आप इसको ये दे दो, ये कमर्शियल बना दो, इस Exactly. चीज का आप ले लो तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने सेलिब्रिटीज भी देखे, जैसे हीना, टीवी आर्टिस्ट, शी हैज आल्सो बीन थ्रू कैंसर, बट she was so active on social media, sharing all her experiences. She was coming out of it along with the people. करेक्ट। So that is very important कि आप लोगों को महसूस ही मत कराओ कि आप बीमार हो. Yes. Right? And family plays a very important role in this. See, on this highlight कि just because she's a star, she got corrected, ऐसा नहीं है। उनको Yeah. अपनी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आया, she consulted the right doctor. Though it was cancer, she fought it and she came back because उनको अपनी लाइफस्टाइल प्यारी है, what she has achieved her career oriented. Correct. बहुत सारे पेशेंट्स लाइफ छोड़ देते हैं, then your family starts treating you bad True, कि आपकी true. वजह से हुआ, आपने खाया इसकी वजह से हुआ।
And I give examples to my patients also. Ki you have seen your celebrities who are playing an important role in your Yeah. social, media. You are True. seeing them every day. Sonali Bendre. Yes. You have now a very recent patient Manisha Koraila. Yes. So these are all because उनके पास पैसा ऐसा नहीं है. They went at an early stage. They fought back and they're back to their feet. Absolutely. And still they are working and still they are going strong. Yes. They are not treating a disease as a disease. Aya or gaya. And that's how they are leaving it. Again, if we talk about AI and Google, सभी लोगों को एक ही चीज होती है कि मेरे बॉडी में ये हो रहा है, लेट मी बिकम अ डॉक्टर. ओके, लेट गूगल, चैट जीपीटी डू ऑल द नीड. अभी तो चैट जीपीटी है, राइट? अभी का जमाना बहुत ही अलग है, एआई का जमाना है. तो लोग जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल देते हैं और उनको आंसर मिल जाता है. उनको लग जाता है हाँ यही सच है. हाउ ऑथेंटिक इज दैट? चैट जीपीटी ऑफ कोर्स अच्छा इनोवेशन है, बट देयर आर लिमिट्स. हमने इसलिए इतना स्किल्स और अपने आप को अपडेट करते हैं कि हम हमारे पेशेंट को राइट गाइड कर सके. सो इसमें मैं 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ. 1, एक फोटो से आप पेशेंट को नहीं देख सकते हो. जब भी आपको डायग्नोसिस करना है या आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आपको फिजिकल ह्यूमन डॉक्टर के पास आना पड़ेगा. देयर आर 3-4 थिंग्स विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. आपकी प्रॉपर हिस्ट्री, आपका मरीज साथ में चाहिए जब आप डायग्नोसिस लेके आओ या वो पिक्चर लेके आओ. थर्डली, अगर बायोप्सी बोला है तो कराओ, स्कैन्स बोला है तो कराओ. जब ये सारी चीजें होगी तो आप चैट जीपीटी को पूछोगे तो वो एग्जैक्ट आंसर देगा. अगर आप गलत प्रॉम्प्ट डालोगे तो देयर विल बी पैनिक मोड्स. यू विल पैनिक, योरसेल्फ गेट स्ट्रेस्ड एंड अपने साथ साथ अपने आजू बाजू वालों को भी स्ट्रेस कर दो. एब्सोल्युटली. So I tell my patient also, don't send me WhatsApp, don't message me, you come down to the OPD. वो फीस के डर से नहीं आते बहुत सारे. I agree. But it is important that I should sit in front of you and explain you. So अभी हमारा medico legally भी we are not allowed to message WhatsApp, or we can write prescription on the WhatsApp also. Okay. So you need to get down to the consulting room, sit with the patient and a respective consent person, and then you discuss the thing. I guess this thing changed because doctors generally WhatsApp पे reply नहीं देते थे. It changed during COVID. Correct. And after COVID, people started getting immediate answers for all their questions. So still people are continuing with that. Yeah, but that causes panic triggers. Yeah, rightly said. And it's very important that, you don't have to become a doctor. There are specialized doctors who have studied for years. Yes. So you have to go and meet them and understand that what are the root cause of your problem, or are you really going through it or not. Now Google and ChatGPT cannot give you every answers. आपने जैसे बोला कि ये सारे रिपोर्ट्स निकालो फिर जीपीटी को पूछो, उसके पहले डॉक्टर मत बनो. So talking about cancer, कई बार लोग एक फियर मोड में आ जाते हैं that any kind of lump or any kind of ulcer is cancer. Yes, it is not every time कि वो कैंसर ही आए. So इसलिए मैं बार बार बोल दूँ कि बायोप्सी कराना है. मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट किया है, टीबी डिटेक्ट किया है. Okay. बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक चर्बी का गाढ़ जिसे लाइपोमा बोलते हैं वो किया है, क्योंकि सडन वेट लॉस, सडन इंक्रीज इन द वेट लॉस ये रहता है. कैंसर वर्ड हमने उसको बहुत ज्यादा हाइप देके उसको बड़ा कर दिया. करेक्ट. अब जब एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक आता है, आपको डॉक्टर बोलता है एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, यू टेक क्विक डिसीजन, यू डोंट थिंक. व्हाई यू थिंक फॉर कैंसर देन? और ओरल कैंसर ठीक है आपका, जस्ट बिकॉज आपको स्कार आएगा तो आपको आपने कितने अच्छे वॉरियर्स है जिन्होंने एसिड बर्न्स, महिलाएं हैं जो अच्छी एक एग्जाम्पल बन रही है सोसाइटी की. व्हाई नॉट कैंसर पेशेंट? अब आई वांटेड टू टेक अ नेम, शरद पवार सर, 3 बार उनको ऑपरेशन हुआ, 2 बार ऑपरेट किया, बट ही कम्स इन द मीडिया, ही फेस द कैमरा एंड ही टॉक्स. सो व्हाई नॉट वी? एंड आपके चेहरे पे हमने कुछ किया, हाथ पैर तो अच्छे हैं, आप काम कर सकते हो. एग्जैक्टली. सो आपने ही मिथ को बहुत बढ़ावा दे दिया. 30 सेकेंड्स का आप सिर्फ रील देख रहे हो एंड यू आर टेकिंग अ डिसीजन, दैट्स रॉन्ग. इट्स एक्चुअली कमर्शियल rather than playing with patient's treatment. Absolutely. And I believe that awareness is also very less when you talk about this niche. People are not so much aware of it. I want to add something on this. There are 3-4 things. One, patient thinks कि X hospital में ही इलाज होता है. नहीं, आपके पास अगर डॉक्टर है, अवेलेबल है, आप अपने घर के पास इलाज लो.
क्योंकि आप एक्स जगह से वाई जगह पे जाओगे, पूरा दिन आप वेस्ट करोगे। एग्जैक्टली। आप अपना पूरा दिन का जो भी आप काम कर रहे हो, ऑफिस मिस कर रहे हो, अटेंडेंस मिस हो रही है, हो सकता है आपका जॉब भी चला जाए। आई वॉन्ट टू टेल व्यूअर्स कि अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो नजदीकी हॉस्पिटल में करो। वी आर सो लकी कि हम मुंबई जैसे शहर में हैं, हमारे हर तीसरे चौथे जगह पे एक हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। मैं ये नहीं बोलती कि आप एक्स डॉक्टर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, यू टेक 2-3 ओपिनियंस बट डोंट डिले द ट्रीटमेंट। और अगर सर्जरी बोला है तो कराओ। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, क्योंकि लोगों को यार, मुझे लगता है परिवार के लोग सारे के सारे डॉक्टर है ना, परिवार में ये बहुत होता है। करेक्ट, एक्चुअली दे आर स्केर्ड ऑफ द एक्सपेंसेस बिकॉज इट इज सेड कि इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग जर्नी। यस, 3 से 6 महीने होता है, बट एक्सपेंसेस भी अब डिवाइड हो गया, इंश्योरेंस आ गया है, वी हैव सीएम फंड, हेल्प यू लाइक एनीथिंग। डॉक्टर रेडी है बट यू शुड बी एबल टू टेक इट। करेक्ट, यू शुड बी रेडी टू टेक द रिस्क, देन डॉक्टर विल टेक अ रिस्क फॉर यू। करेक्ट। अगर मैं विमेंस की बात करूँ तो विमेंस में फाइब्रॉइड केसेस बहुत होते हैं, राइट। रिसेंट एग्जांपल ऑफ माय फैमिली, माय आंट, she got fibroid, like it hit up like anything. Doctor recommended surgery, but still they were trying to listen to a lot of people in the family, right? So ज्यादा से ज्यादा यही हो जाता है कि फैमिली खुद डॉक्टर्स बन जाती है, एंड देन एंड ऑफ द डे जितना हमने एक्सटेंड किया उतना ही हमको चार्ज भी ज्यादा लग रहा है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। करेक्ट, you have to get that surgery done on time. So it's very important कि आप अर्ली फेज में ही ट्रीटमेंट शुरू कर दो ताकि आपको पेन भी कम हो, ट्रीटमेंट को क्योर होने को भी समय कम लगे और आप क्योर हो सको। टॉकिंग अबाउट माउथ कैंसर, व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स? ओके, वेरी सिंपल। कोई भी व्हाइट या रेड पैच हो मुंह में, गले में, जबान को बाहर निकाल के ऊपर करके आप खुद ब्रश के टाइम पे देख सकते हो। एनी बर्निंग सिम्टम्स, मतलब आप थोड़ा भी चिली खा रहे हो और सह नहीं रहा है, इट्स एन अलार्म, आपको कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में, यू गो एंड गेट अ चेकअप डन। कोई भी छाला 2 हफ्ते से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, डेंचर पहनते हो, घाव बन गया है, कोई तो शार्प टूथ या टूटा हुआ टूथ है जो बार बार टंग को इरिटेट कर रहा है, that could also cause a ulcer and convert into cancer. If not cancer, then there is some disease deficiency, multivitamins deficiency में भी मुंह जलता है, पेट खराब होता है। You get yourself check so that अगर infection है, कोई प्रॉब्लम आपके दांत से हो रहा है, उसको सही टाइम पे हम ट्रीट करें, and it should not convert into a big cancer. Yeah. So early stage में अगर पता चल गया that you have mouth cancer, you have any kind of cancer, do you think that it is completely curable? Yes, 90% yes. 10% again patient को मैं blame करूँगी because once they finish the treatment they don't come for follow-ups or they start their again habit history again कि हो गया ना तो क्या है, चलो फिर से खाते हैं, देखते हैं, and casual attitude towards the treatment. और अगर दोबारा आया तो डॉक्टर की गलती, अगर अच्छा हो गया तो भगवान ने बचा लिया। These are the statements which I keep on telling. And we face this. अर्ली स्टेज आओगे, चेहरा भी खराब नहीं होगा, छोटा सर्जरी भी होगा, जेब पे भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा। That's how it is. बट डॉक्टर का नाम आते ही लोगों को डर लगने लगता है ना कि यार डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे सर्जरी करवा ही देंगे। आजकल बहुत जेन्युइन डॉक्टर्स है बिकॉज हम भी डरते हैं चैट जीपीटी से और एआई से। सो वेरी जेन्युइनली अगर सच में आपको है तो दे विल ओनली यूज अ वर्ड कॉल्ड बायोप्सी। बायोप्सी आपको सब कुछ इंडिकेट कर देता है, एंड अगर ज़्यादा उन्होंने आपको एग्जामिन किया, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो बहुत बार बायोप्सी भी मना करते हैं। दे आस्क यू टू टेक सम रिस्पेक्टिव मेडिसिन्स, कम बैक आफ्टर 1 week or 2 weeks. So talking about surgeon also, how do we pick and choose? सी, जब भी आप सर्जन से मिलने जाते हो वो आपको टाइम देता है, आपको आपकी डिजीज एक्सप्लेन करता है, क्या होने वाला है, कहाँ से कट लगने वाला है, क्यों लगने वाला है, एंड ही इज वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट द कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है, और लेट्स फाइट इट टुगेदर। एंड ऑफ कोर्स स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी राइटली सेड। हर डॉक्टर ये नहीं बोलेगा भाई जाके सर्जरी कर ही लो। They should need to have an indication why we are doing it. Absolutely. So every treatment is possible and every treatment can be curable. Again, looking after your mindset, which is very, very important.
लोगों को ये एक मिथ भी है ना, जैसे हमने शुरुआत में ही बात करी कि बड़ी हॉस्पिटल बेटर ट्रीटमेंट. डू यू थिंक इट्स जस्ट अ मिथ और इट्स अ रियलिटी? आई से पार्शियल मिथ. बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हो तो प्लीज़ गो. इट्स वेरी गुड. इट इज़ एडवांस. पूरा टीम आपकी एडवांस सर्जरीज में हेल्प करता है. बट देर आर फ्यू पेशेंट्स जिनको क्वालिटी भी मिलनी चाहिए और इकोनॉमिकल वाइज भी उनके पैसे ड्रेन नहीं होने चाहिए. बिकॉज कैंसर में हर बार कुछ ना कुछ मेडिसिन इसके उसके खर्चे आते ही रहते हैं. फॉलोअप्स में स्कैन्स के खर्चे होते हैं. आई बिलीव स्किल सर्जन डिफाइन करता है. आप बड़े हॉस्पिटल में भी जाओगे तो भी आपको अच्छा सर्जन मिलना चाहिए. अगर आप छोटे में हो तो भी आप सर्जन मिलना चाहिए. करेक्ट. एंड स्किल्ड सर्जन ऑलरेडी उसे पता है कि अगर अर्ली स्टेज है तो वो छोटे सेटअप में कर सकता है. अगर पेशेंट को बीपी एंजियोप्लास्टी हुआ है तो वो रिस्पेक्टिव कार्डियक सेटअप में ही ऑपरेट करेगा. बड़े हॉस्पिटल्स में आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है बट कॉम्प्लिकेशन वहां भी होगा और छोटे हॉस्पिटल में भी होगा. सो इट डजंट चेंज द सिनेरियो. इट डिपेंड्स ऑन अगेन ऑन द पेशेंट्स फैमिली एंड द डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग द पेशेंट. वेरी राइटली सेड दैट हर बार आप बड़ा हॉस्पिटल तो बोल रहे हो. ऑफ कोर्स एज यू सेड दैट पार्शियली इट इज राइट, बट अगेन surgeon, you need to look after a surgeon. You know how good the surgeon is and what kind of treatment that surgeon is providing. So of course if you have a good surgeon, छोटे हॉस्पिटल्स या फिर मिड लेवल के हॉस्पिटल्स में भी आप अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकते हो, राइट, कंसिडरिंग योर पेइंग कैपेसिटी एज वेल. Yes. So talking about success, like, you know, people always see the outer part of success. People never see that, you know, what the journey has been and what the experiences has been. Have you been through any kind of experiences in your life? Yeah. When we are trained for skill surgery, we only know क्या कट करना है, कैसे करना है. We are not in the communication skills. We're not better in that and how to communicate. Sometimes we get emotionally attached, sometimes not. Yeah. But I've started placing our professional boundaries because some patients they start blaming. So I operated a case. He was around 38 years old. एंड उसका मुंह बिल्कुल नहीं खुलता था और राइट साइड में अंदर ही घाव बनता चला गया. Okay. वी डिड अ मेजर सर्जरी. उसका हार्ट भी 30% ही चल रहा था. वी डिड इट इन अ कार्डियक सेटअप, वेरी लेस अमाउंट इकोनॉमिकल स्टेटस में. बट सिंस हमें जो हम निकालते हैं हमें उसे बनाना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड फ्लैप या चमड़ी या जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं. तो जब हम बनाते हैं तो कई बार पेशेंट का इन्फेक्शन हो जाते हैं. तो ही लैंडेड इनटू द इन्फेक्शन. बट उस टाइम पे ही वाज ऑलरेडी लेट तो हमें कीमो रेडिएशन करना जरूरी था. He went to ChatGPT. He took his photograph. He got a photograph done and removed. And ChatGPT में सिर्फ गाल की तरफ एक टाके मार दिए और उसने आके मुझे दिखाया कि मुझे ऐसा सर्जरी आपने क्यों नहीं किया. Oh my God. So at that time, setting it his mindset as a patient, it's very difficult to explain them कि आपका ChatGPT ने आपको सिर्फ सिलाई करके दिया है बट मैं जब करूंगी तो आपका मुंह खुलना चाहिए, आपका जबान बाहर आना चाहिए. Cancer should not come back again. So this was one experience. One more experience where I had a patient where I treated him for 2 years. He was absolutely fine. Again, 40-year-old. Somehow he landed with an HIV with his personal problems. And relatives made such a huge mess. But thankfully, we are protected by medico-legal cases. And if you are not done wrong, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है. आप कितना भी कंप्लेन कर लो, कुछ भी कर लो. एंड टचवुड वो ये दोनों इंसिडेंट ने मुझे सिखा दिया कि यू हैव टू बी ओपन एंड प्रोफेशनल टू द पेशेंट एंड दे विल कम विद एन नंबर ऑफ थिंग्स. पेशेंट के रिलेटिव्स पैसे नहीं खर्च करते. दे ऑलवेज गिव यू ज्ञान देते हैं rather than spending and helping. True. So I think if you are comfortable with the doctor, he is near to you, you have explained all the complications and of course आप भी थोड़ा रिसर्च करके ही किसी को अपना फेस दोगे. मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते, कहीं ना कहीं से वो ओपिनियन लेके ही आते हैं. I guess rather than blaming doctors, I believe that, you know, you need to appreciate them. Correct. Because they are the ones who are right now is kind of a god for you, जो आपकी चीजों को क्योर कर सकते हैं. और मुझे लगता है यार कोई भी चीज आप करो लाइफ में, you need to be receptive, you need to believe. Correct. Without that, again, mindset.
अगर आप ही बिलीव नहीं कर रहे हो कि मुझे अच्छा होना है, या फिर अपने उनकी फैमिली, सी एनर्जीज अट्रैक्ट, राइट? करेक्ट All kind of energies are attracted and you have to deal with it. So you rightly said that you need to be little professional, and I believe that ये journey ऐसा है because humans are emotional, करेक्ट right? you get Doctors attached, yeah. are emotional, man, because they are humans too. And having said that, blaming a doctor for every damn reason just because he or she has treated you doesn't make any sense and doesn't give any kind of positive impact, literally. How do you handle all this kind of pressure? I feel I take them as child. आप बच्चों को कैसे समझाते हो बुझाते हो, Yeah. then eventually they understand. And आजकल तो philosophy भी है, you have to become बच्चा with them, you have to react with them accordingly. True, correct. So it's very important कि आप patient को अच्छे से, मतलब you need to make them more confident, right? End of the day कि वो believe करना शुरू करे, and that's how it is. Because अगर प्रेशर नहीं हैंडल हो पाएगा तो आगे के सर्जरीज में भी उतनी ही दिक्कत आती है. Do you want to share any kind of examples जहाँ पे हाइजीन की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हो? Yeah, there was a recent incident जहाँ पे पेशेंट को, एक फीमेल पेशेंट थी, यंग ही थी शायद, एंड शी वेंट टू चेकअप. उनको ब्लड लॉस हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था. देन वी रियलाइज व्हाट वाज रॉन्ग. वी गॉट अ नोटिफिकेशन सेइंग दैट दिस वेंट रॉन्ग. देन वी केम टू नो दैट शी अंडरवेंट अ पार्लर, ओकेश पार्लर, जिसमें थ्रेडिंग उन्होंने कराई. थ्रेडिंग पे आईब्रोज में से ब्लड आता ही है बहुत बार, सेंसिटिव स्किन होने की वजह से. Since the previous thread was used for the other person or a patient, and that thread was again used to her, तो वो cuts के through blood में गया, and then hepatitis converted. Hepatitis went into the liver, and then she went into the liver, causes of liver failure and all. So it's a rarest, but it's very important कि आप क्या कर रहे हो अपनी body के साथ, क्या करा रहे हो. You have to look around and then give examples. Even say change your dusting cloth every time. टूथब्रश जो बहुत टाइम से चेंज नहीं कर रहा है. बहुत बार घर पे कॉकरोचेस होते हैं which you don't know, it's touching your toothbrush, you're doing that, you don't know what will lead to what. And then फिर कुछ ऐसे भी सुनने मिलता है कि डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट कराए, कुछ निकला नहीं, बट मुझे ये प्रॉब्लम है. So there are some things जिसके लिए हमारे पास भी टेस्ट नहीं है, we're still researching on it. Okay. So this is you yourself can take care of you or yourself and your family. So hygiene plays very important role. Yes. It can lead to dangerous problem in your body. अभी तो मैंने बहुत बच्चों को भी देखा है. If you talk about young generation, they are also going through cancer. Do you have any kind of say in that? See again, दो चीज़ों से कैंसर बनता है. एक ट्रिगर जोन जो मैंने आपको बोला सेल्स से, विच कैन बी प्रोसेस फूड, फ्रूट्स, जो भी आप बॉटल पे ला रहे हो, प्लास्टिक से अवॉइड करना है बेसिकली. सेकेंड इज योर बोन मैरो. जो पेशेंट ग्रोथ होता है, बच्चा जब ग्रोथ हो रहा होता है तो हमारा ब्लड बनाने का काम बोन मैरो करता है. उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस या चेंजेस की वजह से पेशेंट को ब्लड कैंसर होता है. बच्चों में अक्सर ये देखा गया है. एंड इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट और टाइम टेकिंग होता है. उसके डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं. आपने, हमारे मुंबई में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट है, क्योंकि बोन ट्रांसप्लांट इन बच्चों को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है. अब आप पूछेंगे अर्ली साइंस क्या है. देखो, फीवर आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, बार बार ब्लड टेस्ट में खून कम आ रहा है, तो यू हैव टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन, या आपको जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो खुद ही आपके एक्सपर्ट के पास भेज देगा. बट अभी तक मैंने यंग से यंग 23 साल की लड़की को ऑपरेट किया है. शी हैड अ शार्प टूथ. जैन फैमिली, कोई हैबिट होने की गुंजाइश नहीं दूर दूर तक. Oh my God. एंड शी हैड अ वेरी शार्प टूटा हुआ टूथ, जो दाढ़ बोलते हैं हम लोग, और काफी समय से था, 3-4 years से था, एंड दैट कन्वर्टेड इनटू टंग कैंसर. Oh my God. Yes. So it was against genetic plus poor oral hygiene. But yes, this could be a part जिसमें hygiene आप maintain नहीं कर रहे हो. Okay. So what kind of suggestions you would like to give this young parents? See, young parent, अगर आपका baby है, try to make home cooked food. Don't depend on the packets which you hear it. I don't want to take name.
एंड पुराने टाइम पे दादी मम्मी नुस्खा देती थी कि इसका रागी का बनाओ, Yeah. बाजरा का बनाओ, Hmm. सो दिस इज ऑल गुड फूड। ये दो। बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक है। बॉइल्ड वेजिटेबल्स दो, जिससे पेशेंट आपका बच्चा स्ट्रांग हो, कोई बीमारी पे लैंड नहीं हो। दूध एक लिमिटेशन में होनी चाहिए, बिकॉज अगेन यू नो हाउ अडल्ट्रेशंस आर गोइंग ऑन इन द Yes. मिल्क। आप जितना हो सके नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, एंड स्पेशली आई थिंक पेरेंट्स मिमिक देयर, बच्चे मिमिक देयर पेरेंट्स। Yes, absolutely. अगर आप ही चिप्स का पैकेट लेके बैठे हो तो वो बच्चा तो करना ही है। हर True. बच्चा चॉकलेट का जिद करता है, यू कैन नॉट से नो टू द चाइल्ड, लेकिन एक हर चीज़ की लिमिटेशन होनी चाहिए। एंड यू शुड ट्रेन हिम और हर एज सच कि यस, मोर ऑफ आजकल स्कूल्स में भी कंपल्सरी हो गया है होममेड फूड Yeah. ही लेके आओ Yeah. टिफिन में। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच इज स्टार्टेड, एंड उसकी वजह से पेरेंट्स भी होम कुक फूड ही खाते हैं। Yeah, rightly said. और कई बार पेरेंट्स खुद सीखते हैं बच्चों से, करेक्ट। बिकॉज बच्चे ही खुद आके बोलते हैं मम्मा ये नहीं खाना, पैकेट फूड ही नहीं खाना। यस यस। Talking about thyroid, it has become a lifestyle disease, right? Do you think that thyroid can also be converted into cancer? यस, थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के पास होती है, उसमें अगर सूजन आ रही है तो योर डॉक्टर विल आस्क यू टू गेट अल्ट्रासाउंड एंड एन एमआरआई, और फिर एक सुई की जांच करते हैं जिससे हमें पता चलता है आपको कैंसर है या नहीं है। बट सूजन अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कई बार हमें ऑपरेट करना पड़ता है। इसमें 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक जिसमें बिल्कुल निशान नहीं आए, इट्स एन एडवांस टेक्नोलॉजीज जो रेडियोलॉजिस्ट इंटरवेंशन करते हैं, और एक होता है जो आप प्रॉपर कमर्शियल जैसे आपकी ट्रेडिशनल सर्जरीज होती है कट करके। मैंने रिसेंट गॉइटर ऑपरेट किया है जो 1.5 kg का था। पेशेंट 3 साल से इसको लेके घूम रही थी, अगेन क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है, बट Yeah. शी केम फॉर ऑपरेशन बिकॉज वो गले में कुछ पहन नहीं पा रही थी। When we Correct. removed it, she was very lucky कि it was not cancer. And recently I operated a 17-year-old girl. She also Wow. had a thyroid की गांठ, which is common. कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम ब्लड में थायराइड कराते हैं वो अलग है और जो गांठ है वो अलग है। अच्छा। तो ब्लड में जब हम लोग T3, T4, TSH बोल रहे हैं तो आपके हार्मोन जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। कई बार आपका एक साइड का थायराइड निकालने के बावजूद कुछ साल बाद आपका थायराइड रेज हो सकता है और आपको दवा चालू हो सकती है। कई बार आपको नहीं भी चालू होगी। सो इसीलिए फीमेल्स में स्पेशली थायराइड का ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। अगर गले में सूजन है तो आप एक्सपर्ट को दिखाइए, वो अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट बोलेगा। अगर सर्जरी है तो सर्जरी कराइए। सो थायराइड के लिए इज इट ओनली ब्लड टेस्ट और यू हैव टू गो थ्रू दिस स्कैनिंग आल्सो? सी यूजुअली जब थायराइड हार्मोन बढ़ता है तो आपके बॉडी के सिम्टम्स बढ़ते हैं, जैसे किसी का वेट लॉस होता है, कोई बहुत हाइपर होता है, कोई इरिटेटेड होता है, हेयर लॉस होता है। ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स है जो थायराइड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। हाइपर या हाइपो ये आपकी बॉडी का सिम्टम्स देगा। जब गले में स्वेलिंग आएगी तो थायराइड हार्मोन तो बढ़ना या कम होना ही है, बट वो गांठ जब दिखेगी या दिखने लग जाएगी तो योर डॉक्टर विल आस्क यू टू गेट द स्कैन डन। Okay, so before that it is not required. Talking about chemotherapy, right? लोग घबरा जाते हैं ये वर्ड से ही। Would you like to say something on that? सो कीमोथेरेपी इज अ पार्ट ऑफ इधर आपके ऑपरेशन से पहले होगा, अगर आपका बहुत बड़ा ट्यूमर है गाल से बाहर आ गया हो, और या फिर आपके ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी दी जाएगी, या फिर रेडिएशन जिसको हम सिकैया बोलते हैं उसके साथ आपको दिया जाएगा, ताकि आपकी कैंसर सेल्स को हम पूरी तरीके से मार पाए और दोबारा कैंसर होने के चांसेस कम हो जाए। बट स्टिल देर आर माइक्रो सेल्स जो हमारी आंखों से नहीं दिखती है इन द टाइम ऑफ ऑपरेशन, वो हम कीमोथेरेपी से मारते हैं। कीमोथेरेपी 2-3 टाइप की होती है, गोलियां होती है, मेडिसिन होते हैं, टैबलेट बोलते हैं जिसको, इम्यूनोथेरेपी होती है। आपके इंजेक्शंस, आपके आईवी, आपके नस के थ्रू इंजेक्शंस दिया जाता है। कई बार हम एक डिवाइस लगाते हैं चेस्ट पे जिससे कीमोपोर्ट बोलते हैं, ब्रेस्ट पेशेंट्स को हम उससे कीमो देते हैं।
तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट लॉस होता है, मुंह में चेंजेस आते हैं, बाल झड़ते हैं। Yeah. इसके वजह से पेशेंट नहीं कराना चाहता है, बट दिस इज ऑल रिवर्सिबल। जैसे ही आपकी थेरेपी स्टॉप होगी, आपके सब कुछ बाल, आपका चेहरा वगैरह सब वापस आएगा, मुंह का स्वाद भी वापस आ जाएगा। But treatment is important. Don't fear chemotherapy. There are more drugs which has come in the market जिससे अब बाल भी नहीं झड़ते हैं. Yeah, I've seen that recently. Most of the, I mean, lot of patient I've seen कि अभी treatment बहुत easy हो गया है, Correct. right? जहाँ से बाल नहीं झड़ रहे लोगों के. So guys, you need to understand that doctors are humans after all. So don't blame them for every damn reason. So we had amazing conversation, over this topic, because most of the time, now of lately I'm hearing this mouth cancer a lot. काफी लोगों को जो tobacco खा रहे नहीं खा रहे. So it's very important to break kind of a myth and spread some kind of awareness कि ये सारी चीजें होती है और आपको करनी भी चाहिए. Which are the early stages where you can cure and reverse all the symptoms of your diseases, and it will be curable. Thank you so much, Reena ji. Once again, we had wonderful time. We are heading towards the last segment of our show, that is rapid fire round. Okay. So whatever questions I'm going to ask you, you need to answer in one word. So are we ready for it? Yes. All right then. Cancer से बड़ा enemy. Delay करना. One habit everyone should quit today. Processed food खाना बंद करो. So when you say processed food, can you just describe? Any kind of packets, anything which has container, plastic containers. Correct. You have to stop it. True. Tea or coffee? Coffee before OT, tea after OT. Okay. So you can have both. Yes. But nothing can be, you should not consume much. OT before surgery, calm or nervous? Calm inside, more of responsible outside, because आप OT कर रहे हो, मेरे लिए वो normal जिंदगी है, but बाहर वालों के लिए it's very nervousness. True. And it's very important कि आप emotionally attached हो सबसे. One food you should avoid personally? Anything which has a lot of spices. That's why in foreign countries people don't have spice Correct. at all. Bland food. Yeah, absolutely bland. And you can look at their health also. They're fit and fine. One myth that irritates you the most? Biopsy से कैंसर नहीं फैलता है, नहीं फैलता है, नहीं फैलता है. Morning person or night owl? I am a surgeon. Anything comes with the responsibility I have to answer. So I'm both. One word for survivors? Warriors. Fight करो. Your life mantra? As Krishna Bhagwan lightly said, कि आप अपना धर्म करो, कर्म का कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो. जिसको अच्छा लगेगा वो आपसे ट्रीटमेंट कराएगा, जिसे ब्लेम करना है वो अपनी खुद की किस्मत का भुगतता है. Exactly. Very rightly said. And this line comes to me every single time. कम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो. Very rightly mentioned in Bhagavad Gita as well. And one last message to all the viewers. I'll say कि कैंसर आपने ही इसको fearful बनाया है. कैंसर इज वेरी इजीली टू बी प्रिडिक्टेड. आप अपनी फैमिली से ज़्यादा उसको ऐसा हुआ था, उसको डबल बार आ गया, ट्रिपल बार आ गया, उनको कीमो सक्सेस नहीं था, कीमो से बाल झड़ता है. अगर आप जिंदा रहोगे तो आपके बाल भी वापस आएंगे, आपका चेहरा भी ठीक हो सकता है, आप दोबारा सर्जरी करके 4 से 5 साल बाद अच्छे से अपना फेस वापस बना सकते हो. तो प्लीज कैंसर अगर आया है या बायोप्सी बोला है तो डराओ मत, पेशेंट को मोटिवेट करो, उसका भी जीने का हक है, उसकी भी जिंदगी है. थैंक यू सो मच. एंड वन लास्ट मैसेज फॉर आवर प्लेटफॉर्म एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ. आई थिंक इट्स मोटिवेटिंग मी ऑन माई फैमिली एंड माई डेली लाइफस्टाइल कि हमें एक सोच रखनी चाहिए जो सब कुछ चेंज करती है. यू आर इंस्पायरिंग विद दिस वर्ड. Thank you so much, Reena ji, for being here and sharing all the most important awareness, which is important nowadays to understand, because we are living in 30-second world, right? जो सामने आता है उसी पे बिलीव कर लेते हैं, पर जो ट्रीट करने वाला है उस पे बिलीव करने के पहले हम 10 सजेशंस लेते हैं. Correct. So thank you so much once again, and to all the viewers, guys, early symptoms, early treatment, this should be your mantra.
जैसे रीना जी ने बहुत अच्छे से कहा है पूरे एपिसोड में, do check this entire episode because you're going to get very good suggestions and you're going to get to understand कि कौन से early symptoms है और कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए ताकि हम ये चीज़ को अवॉइड कर पाए और हमारे जिंदगी में रिस्क ज़्यादा ना रहे. So thank you so much once again. Signing off for today, Nirali Pandya, एक सोच, one idea that changed your life.